السلام علیکم یا ابا وعلا اولاد حسین اللہم انت قاتلت الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین. السلام علیکم یا سیدہ زینب السلام علیکم یا رقیہ بنت امیر المومنین. السلام علیکم یا کلثوم بنت علی. السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. ختم ہو گیا 10ویں محرم کا دن. عتبہ کی اذان سے شروع ہوا تھا حسین کے سجدے کے عقب. جوان کی جوانی سے شروع ہوا تھا حسین کی ضعیفی پہ ختم ہوا. جو سارے دن کے تھکے مار پہ بیٹھوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اکبر کے امامے سے شروع ہوا تھا زینب کی چادر. ڈھل گئی وہ شام جسے نہیں ڈھلنا چاہیے. مر جاتی شیعہ قوم بیوی طرح جوتا بھی بازار میں نہ آتا. ایک شاعر نے ایک منظر کھینچا ہے شام غریباں کا. وہ منظر سنا. تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں عجب تباہی مچا رہے ہیں. جو شام غریبوں سننے کے لیے آئے رونا اختیار میں نہائے اختیار میں. تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے ہیں. تناب خیموں کی کٹ رہی ہے عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے ہیں. سکینہ مقتل میں کھڑی ہو گئی کہتی ہے تم تو مقتل میں سو رہے ہو. ادھر تماچے اٹھے علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیمہ. سید مجھے معاف کر دینا شام غریبہ میں اس سے بڑی مشکل کون سی ہوگی. مدینے میں زہری نے سید السادین سے پوچھا آقا سب سے بڑی مصیبت کا تھا. فرمایا شام غریبہ. اس نے کہا مولا شام غریبہ سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ کون سا تھا. اب جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا جب اس نے پوچھا نا شام غریبہ مولا جب خیام حسینی کو آگ لگی مولا تب زیادہ دکھ ہوا تھا یا مولا جب حسین قتل ہو گئے تب زیادہ دکھ ہوا تھا. سجاد کی آنکھوں کا خون بارش میں نکلنا شروع ہوا. سجاد نے کہا موت آ جاتی سجاد کو میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھتا. اس نے کہا مولا کون سا منظر. فرمایا جب میرے باپ حسین کا قاتل خیمے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ان بیویوں میں سے زینب ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے جسے عباس بنات. اکثر پڑھنے والے کہتے ایک خیمے کو آگ لگی سیدزادیاں دوسرے خیمے میں چلی گئی. غلط ہے. کتابیں لکھتی ایک خیمے کو آگ لگ کے سیدزادیوں کو دوسرے خیمے میں جانے کا وقت نہیں ملا. ان کمینوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا. چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگنی تھی. سیدوں کے بچے کربلا کی ریت پہ ایسے بھی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے
हर बीबी सैयदा ज़ैनब को काबा समझ के करीब आ गई। अली की बेटी मुवद्दत और ततहीर का काबा बन के खड़ी थी। हर सैयद और गैर सैयदादी ज़ैनब का तवाफ कर रही थी। देख के कह रही थी बीबी अब तू हुज्जत है, तू बता कहाँ जाए। हर मस्तूर सैयदा ज़ैनब से पूछ रही थी। अली की बेटी वहां गई जहाँ सज्जाद हश में थे, जाके सज्जाद के सर पे हाथ रख के कहती सज्जाद अब तू वक्त का इमाम है, ज़ैनब हुज्जत की अताअत के बगैर नहीं चलती। सज्जाद मुझे बता खैमों को आग लग गई है, चल के मर जाए या बाहर निकल जाए। तू हाय कहना के सैयदा ज़ैनब के जुमले पे आसमान होता है, जब कहा ना चल के मरे या बाहर निकल जाए। मौला सज्जाद ने कहा आंखें बंद करके अम्मा शरीयत मोहम्मद में जान बचानी चाहिए, अम्मा खैमों से बाहर निकल जाओ। बीबी ने रोके का सज्जाद तूने हुक्म बंद आंखों में किया है, मेरा लाल आंखें खोल के सुना। इतना जुमला कहना था। सज्जाद की आवाज है अम्मा शरीयत बंद आंखों में भी नहीं है, खुली आंखों में भी नहीं है। बीबी का आंखें खोल के मसला बता, मेरे सर पे चादर सज्जाद आंखें खोल के बता, मेरा लाल मेरे सर पे निगाह खोल। इतना जुमला कहना था कि सज्जाद की आंखें खुली। अब आप ऐना ऐना हो या अबल हुसैन, कहा गया मेरा बाबा हुसैन। फरमाया सज्जाद अब मर्दों में तेरे और बाकर के अलावा मेरे घर में कोई नहीं। सज्जाद की आवाज आई अम्मा खैमों से बाहर निकलिए। सैयदा की आवाज आई सज्जाद मैं जिंदगी में कभी बाबे के सामने बगैर चादर सज्जाद बाहर 9 लाख कातल खड़ा है। सज्जाद ज़ैनब के सर पे चादर कोई नहीं। अल्लाह तेरी बेटियों के सर पे पर्दे चढ़े, ये ज़ैनब का सदका है। इतना जुमला कहना था। सज्जाद ने करबला की खाक उठाई, बीबी ज़ैनब के सर पे डाली। आवाज़ आई अल्लाह अपना चेहरा बालों से छुपा, करबला की खाक तेरे बाल छुपा लेगी। एक बीबी आती रही, सज्जाद खान के शिफा का भुटका बनाता रहा। सबसे आखिर में आई हुसैन की बेटी, सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के कहती सज्जाद उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे, मेरे बालों से मेरा चेहरा नहीं छोटा। सैयद और सागदीन की आवाज आई सकीना हाथों का पर्दा बना। जनाब सकीना ने हाथों का पर्दा बना। मक्तल में अली की बेटियां सैयदादियां। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है ये करबला का वाहिद रावी है जिसने मक्तल को रवायत की है। ये कहता मैं करबला के टीले पे देख रहा था, यकदम सैयदा ज़ैनब चलते हुए खैमों में वापस गए। हमीद कहता मुझे भूल गई करबला की जंग, मेरा हाथ जिगर पे आ गया। मैंने कहा अली की बेटी आग में क्यों कूद गई है? अली की बेटी का कोई कीमती सामान रह गया है। हमीद कहता मर जाता मैं ये मंजर न देखता। थोड़ी देर बाद आग में से ज़ैनब बाहर आई, अकेली बाहर आई, कमर को छुपाया। सज्जाद बचा के आ गई। जले हुए खैमों की राख में बैठ गई अली की बेटियां। ये शाम गरीबा में लाइटें क्यों बंद की जाती? खुदा ने खूब अंधेरा कर दिया। रात ज़ैनब का पर्दा बन के उतर आई। शाम गरीबा खूब अंधेरा हो गया। 9 लाख ने मशाले जलाई।
जले हुए खैमों की आग ज़ैनब ने एक इशारा करके बुझा दी। अली की बेटी खूब अंधेरे में सैयदों के यतीम सीने से लगा के या थोड़ी देर के बाद देखा कि एक मशल ख़याम हुसैनी के करीब आ रही। जनाबे बाकर ने सज्जाद के कदमों पे हाथ रखा। आवाज आई, बाबा बेशक मैं छोटा हूँ मैं भी गाजी का शागिर्द हूँ। बाबा इजाजत है मैं आगे जाके रास्ता रोकूं। जनाबे बाकर तड़प के उठे। जब आगे जाके देखा तो आने वाला कोई मर्द नहीं था, एक मजदूर थी। शरीफ इमाम ने आवाज दी, मन हमसे तारुफ करवा तू कौन? आवाज आई, मौला मैं होर की सोच रहा हूं। मैं ख़याम हुसैनी में पानी दे दिया। हौसले के साथ सुनना, ये गरीबों की शाम है। मैं मिन्नत करके कहता हूं जिन्होंने पूरा अशरा सुना, कम से कम आज की शाम गरीब बन के बैठे। भूल जाना अपनी अमीरी। एक बंदे ने मेरे मौला से पूछा था, मौला तेरे बापे को कैसे रोया करे? फरमाया ऐसे रो जैसे पूरी बात जवाब दे। आवाज ऊंची हो तो शर्माना ना। इन आवाजों में सैयदा ज़ैनब जब तू ऊंची आवाज में चीख मारता है, बंदे में बैठी सकीना भूखी का नाम बनाते रो के कहती है भाई ये चीखे मार रहे हो हमारा रिश्तेदार है, सकीना हमारा आज़ादार है। सकीना रो कहती है भाई ये करबला में होता मेरे ताज है, करबला में सैयदा ज़ैनब की आवाज आई, तेरा शुक्रिया मैं नहीं पी सकती, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारेगा। बीवी मेरी मेहनत तो कबूल कर। शहजादी ने कहा तू हमारे शहीद का हरम है, मैं तुझे दरवाजे से खाली नहीं उठाऊंगी। बेशक अब मेरा दरवाजा जल गया लेकिन ततहीर के घर के शाया निशान नहीं। हम तो कातल को भी खाली नहीं भेज सकते। बीबी ने प्याले में पानी दिया, पानी को देखा ज़ैनब रो पड़ी। पानी को देख कहती अब आया मेरे खेमे जब असर चला। अली की बेटी ने अपनी जगह छोड़ी, आवाज अंधेरे में देख कहती ऐना ऐना सुकैना, कहाँ बैठी है हुसैन की मजलूमा बेटी? रेत में बैठी हुई। जी अम्मा ज़ैनब। आवाज आई सुकीना पानी पी। फरमाया अम्मा आपने क्यों नहीं पिया? शहजादी की आवाज आई, जब छोटे प्यासे हो बड़े नहीं पीते। मुझे नहीं पता वो किस ख्याल में बैठा, जब छोटे प्यासे हो बड़े नहीं पीते। सकीना तड़प रहे थे, ताए हाथ में पानी का प्याला लिया। सकीना करबला में दौड़ छोड़ी, आवाज आई कहाँ जा रही है? फरमाया हो रहा है, जब छोटे प्यासे हो बड़े नहीं पीते। असली में पानी आगे खोलो मेरा मेरे वाला
پھر بیٹھے کسی کا دل دکھ جائے ایک لطیف اشارہ کروں گا مجھ سے وضاحت نہ مانگے میں غیر سید ہوں میں کنیز کا بیٹا مجھ میں جرت نہیں ہے کہ میں حق پڑھوں مجھ سے وہ مصعب کا حق ادا نہیں ہوگا ہاتھ مانگتا ہوں اشارہ کرتا ہوں حسین کے جانے کے بعد اور شام غریبہ سے پہلے سکینہ کے ہاتھ یہاں رہے مجھے معاف کر دینا کنڈیاں کھولی نہیں گئی کوئی ماں گود میں بچہ اٹھا کے بھاگ رہی تھی کسی کی کمر پہ اس کا سرمایہ تھا جب بیبیاں مقتل میں دوڑی ہر بیبی اپنے اپنے وارث کی لاش کی طرف دوڑی حمید کہتا کہ میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا میں نے ایک مستور کو دیکھا اس نے ایک گٹھڑی کو یوں سینے سے لگایا